Hello everyone. I hope you all are well with your family at home. So, in the previous class, I have described about the life after the Harappan civilization, composing of Rig Veda, Princip and Pradasi. So, today I am going to describe the next topic, the earliest states. So, let's proceed to the topic. And the topic is the earliest states, यानी कि प्रारंभिक राज्य. हिंदी की बहुत अच्छी कहावत है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, या समय परिवर्तनशील होता है. Yes. In our Indian history, the 6th century BCE, it was a major turning point in our Indian history, because that time, you can also say that this time early states, cities were growing, the usage of iron, development of coinage, etc. had started. And that time the rise of many religious sectors, but only Buddhism and Jainism have survived until today. यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, इसको इतिहास में परिवर्तनकारी काल कहा गया है. क्यों? क्योंकि उस समय काफ़ी जो राज्य हैं, नगर हैं, और ग्रोथ होना शुरू हो गया था, और साथ साथ इन शहरों में लोहे का उपयोग, सिक्के का विकास, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी. व्यापारी वर्ग अपने लेन देन के लिए सिक्के का यूज़ कर रहे थे. That's why it is known as the major turning point in Indian history. And that time the 16 states were known as Mahajanpads, and each state has its own capital. I am telling you the some names like the Awadhi, Magad, Kosala, Kuru, Panchal, Gandhar and Avanti. I told you that there were 16 states, but why I told you only the 7 names? Because these Mahajanpads were more powerful than the others, and all these states were situated in the valley of the Ganges and the Yamuna, and each Mahajanpad were ruled by the kings, some known as the Gan and Sang. But the power was shared by a number of men, often collectively called the Rajas. यानी कि जो भी महाजनपद हैं, उसकी राजधानी हुआ करती थी, और उनमें से जो भी साम्राज्य को चलाते थे उनको राजा कहा गया, किंग कहा गया. लेकिन उनमें से कुछ ऐसे महाजनपद थे जो गण और संघ के द्वारा चलाए जाते थे, यानी कुछ व्यक्तियों का समूह होता था, उनके द्वारा वो चलाया जाता था. एंड द लॉर्ड बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू दैट गण. वी डोंट हैव द सफिशिएंट सोर्स about the 16 Mahajanpads due to the lackness of sources, but it is probably it was seems that some of these states lastly for nearly 1,000 years, and the resource for survive were the land resource. यानी कि राजा अपने
राज्य को चलाने के लिए ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो लैंड रिसोर्स था यानी कि जो कर थे वो लैंड इसमें माना जाता है जिसका इस्तेमाल किया जाता था। तो लैंड रिसोर्स जो है उस समय का जो है राजा के लिए ऐसा था, और ऐसा माना गया है कि जो महाजनपद हैं लगभग हजारों वर्ष तक जो है इनका राज्य रहा है। And the capital city was fortified, and to protect that city they need the armies and the bureaucracies, यानी कि जो भी राजा है, जो राजमहल था उसको किलाबंदी चारों तरफ से घेरा गया था और उसकी सुरक्षा के लिए उनको सेना और नौकरशाही, ये नौकर वगैरह चाहिए था जो जो राजा के पास उपलब्ध थे। बट दैट टाइम in the 6th century, about the 6th century onwards, the Brahmins had begun to compose Sanskrit text known as Dharmasutra. This contains rules and norms for the rulers and other social classes. You can also say the Dharmasutra was the book of law, यानी कि नियमों का, कानून की, ये बोल सकते हैं उसके अंदर नियमों की ये किताब थी धर्मसूत्र, और जो कि ब्राह्मणों के द्वारा 6th जो सेंचुरी है बीसी है उस समय लिखा गया था और संस्कृत भाषा में इसका था, जिसके अंदर सभी वर्ग के लोग की उनकी क्या नियम है, उनको क्या कर्तव्य है, ये सारी बातें मेंशंस थे। And the rulers were advised to collect taxes from the cultivators, traders and artisans, because the king had to maintain his kingdom. That's why they collected the taxes from the different people. But there is a confusion. Did they collect the taxes from the pastoralists and the forest people? We don't have the sufficient knowledge about that, because there is no any text proof. That's why we don't have the, probably they did not take the टैक्सेस फ्रॉम दैट। बिना साक्ष्य के हम ये नहीं बोल सकते हैं। एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि हो सकता है जंगल में लोग रहते थे इसलिए उनसे टैक्स नहीं लिया जाता रहा होगा। एंड द अदर थिंग दे डिड दैट दे रेड ऑन sorry neighboring states to increase their wealth. After attacking the neighboring states, they took all the precious items for increasing their wealth. So that thing were did by the king of the Mahajanpads. And the last one things, they need the, to maintaining their raised, they need the standing armies and maintain the regular bureaucracies. The other continues to depend on sepoys recruited mostly from the peasantry. यानी कहने का मतलब कि उनको आक्रमण करने के लिए, छापामारी करने के लिए सेना की आवश्यकता होती थी। तो बहुत सारे राजा वो सेना का रखा करते थे, और लेकिन बहुत सारे ऐसे राजा थे जो छोटे राज्य थे वो दूसरे राजा की हेल्प लिया करते थे, या अपने सेना में किसानों को ही वो बहाल किया करते थे। तो दीज वेर द थिंग्स of the Mahajanpads. Now I am going to show you a map of the capital city. So this is the map of the capital of the Mahajanpad. You can see like the
मगध, राजगीर, मगध की जो कैपिटल है राजगीर है, हाँ, कुशीनगर, इंद्रप्रस्थ. So these are the names of the capital of the Mahajanpads, and you have to practice at home many times because this is important for the examination. इसको बार बार आप करिए ताकि ये प्लेस आपको याद हो जाए कौन कहाँ पे है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे चीज़ वो आते हैं और बहुत ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं. सो डू मोर प्रैक्टिस एट होम. Okay, now proceed to the next topic. So our next topic is the first amongst the 16, Magad. So between the 6th and the 4th centuries BCE, Magad was the most powerful Mahajanpads. And according to historians, this development in a variety of ways, especially Magad was a region where agriculture was especially productive. यानी कि मगध जो कि बहुत शक्तिशाली महाजनपद में से एक राज्य था और इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें एक जो पहला कारण है वह है कृषि, क्योंकि ये जो राज्य था वो उसकी जो भूमि है वो गंगा और सोन नदी के किनारे थी. नतीजा है कि ये सारी भूमि जो है लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी और इससे बहुत ज़्यादा जो है खेती अच्छी हुआ करती थी. एंड अनदर वन थिंग वाज द आयरन माइंस फॉर टूल्स एंड वेपन्स. पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि झारखंड और बिहार दोनों एक ही थे और हमारे बिहार से झारखंड ये कब अलग हो गया? 15 नवंबर 2000. ये हमारे देश से, हमारे राज्य से ये अलग हो गया. एंड दैट टाइम आयरन माइनिंग एंड द tools and the weapons were made by the army or the different people. तो उस समय एलिफेंट जो कहा जाता है, जो जंगल के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी और ये एलिफेंट ये फॉरेस्ट रीजन्स में पाए जाते थे और इसका डिफरेंट पर्पस में आर्मी में इसका यूज़ हुआ करता था. सो दैट टाइम द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ cheap and convenient communication. River route was used for the communication, means of communication, and it was the cheapest. यानी गंगा और जो सोन नदी है इन सबों के माध्यम से जो है ये सबसे सस्ता कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस जो होते थे, ट्रेड होते थे, उसके लिए बहुत अच्छा ये कम्युनिकेशन है. एंड we know about all the things according to the Buddhist and the Jain writers. ये सारी की सारी जो बात है ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो जैन राइटर्स हैं, उनके लिखने की वजह से ही ये हमें ये मालूम हो पाता है कि ये सब घटनाएं उस समय क्या हुई थी. तो अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स मगध वाज द वेरी इम्पोर्टेंट. एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसमें क्या थी कि मगध की जो सराउंडिंग्स एरियाज थी उसको हिल्स जो है वो डिफेंड किया करते थे. और आपको मैं कुछ राजाओं के नाम बता दूं. कहा जाता है कि अगर लीडर बढ़िया हो तो कोई भी राज्य बहुत तरक्की करता है, कोई भी सेक्टर. एक आम बात है कि कोई भी अगर
अगर देश किसी अच्छे राजा के हाथ में है तो वो देश काफ़ी तरक्की करता है। तो यहाँ पे जैसे बिम्बिसारा है, अजातशत्रु है, हाँ, महापद्मानंद, तो दीज वेयर द एम्बिशियस किंग टू, you can say these were the best king, and with the help of the different ministers, they always implement their policies. That's why the Magad became the most powerful Mahajanpas. तो हम मगध की बात कर रहे हैं। राजगह, राजगह क्या है? राजगाह जो कि राजगीर की जो है, जो अभी प्रेजेंट है, जो राजगीर हमारे बिहार में है, उसी का पुराना नाम था राजगह। द मीनिंग ऑफ द राजगाह इज द हाउस ऑफ द किंग। इट मीन्स राजा का घर। और पहाड़ियों के बीच यह जो राजगाह है, पूरी तरह से एक वाल्ड इसमें की गई थी। ओके, यानी कि ये जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स था और पहाड़ियों पे इसकी ये जो बनाई गई थी, राजा ने अपने महल को उसको बना रखा था, पूरी तरह से घेराबंदी की गई थी। और बाद में आज की डेट में जो है ये मतलब 4th सेंचुरी में जो है इसको जो है शिफ्ट करके जो है पाटलिपुत्र, इसको जो कैपिटल है इसकी पाटलिपुत्र, जो कि आज की डेट में ये पाटलिपुत्र, जो कि द प्रेजेंट नेम ऑफ द पाटलिपुत्र इज द पटना, जो कि पटना अभी इसका वास्तविक नाम है। और गंगा जो है, ये नदी जो रिवर रूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है। तो दीज ऑल आर द थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मगध डायनेस्टी। Okay, one thing, children, if there is any lackness, so please give me some suggestions. How are you feeling? If you have any doubt, also write your feedback in the comment box. Okay, thank you.